Hi guys. So let's start today's session. What we are going to do today. In last session, we are done with the rational number, right? So we are done with the rational number. Now, what kind of questions we are going to get in this rational numbers? So let me share my screen. We are talking about the chapter 1, class 9, okay? So, but this kind of question, these kind of questions you will get in other classes also, like 8th class, 7th class, you will have if you have rational number. So you can see the question number 2, right? Find 6 rational number between 3 and 4. So we are going to get these kind of questions in rational number chapter. We have rational numbers 3 and 4, and we need to find out other rational number between 3 and 4. So we can have many rational number between 3 and 4. Any two numbers, we can between any two numbers, we can have many rational numbers. So don't get confused if your friend has some a different answer, you have different answer, right? So we have 3 and 4. Whenever you get this kind of questions, what you need to do, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है. अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स इट हैज वन, राइट? इसका मतलब इसके वन है. सो आपको कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 6 रेशनल नंबर. व्हाट यू कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7. ओके आपको अगर 6 नंबर फाइंड करने तो आप 7 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो. मैथ्स का रूल कहता है कि आप अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा. अगर आप किसी नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपको सेम नंबर को माइनस भी करना पड़ेगा. सेम आई एम गोइंग टू डू विद द 4. So I'm going to multiply and divide 4 by 7. So we will have now 7 times 3 is 21 and denominator will be 7. And 7 times 6, 7 times 4 will be 28 and denominator will be 7. Now we have 21 upon 7 and 28 upon 7. Between these two numbers, you will have rational number. You can write 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7. It's 7. 25 upon 7, 26 upon 7, 27 upon 7, and you have 28 upon 7, right? So you have these 6 rational number between 3 and 4. So जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है, it means it has denominator 1, and then you need to multiply and divide by the same number, both the numbers, right? You can have any number. It's not 7 or 8 or any number. You can multiply the 3 and 4 by any number. Okay, let's have the third question. 3 upon 5 and 4 upon 5. Now we have 3 upon 5. You can have the denominator, same denominator is there, right? 3 upon 5 and 4 upon 5 दोनों डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा. ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारे पास है 3 upon 5 और हमें 6 नंबर अगेन फाइंड आउट करने हैं या 5 नंबर करने, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको. सो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 को 6 से, 5 को भी 6 से ही करना पड़ेगा और इसको भी 6 से और इसको भी 6 से करना पड़ेगा. तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 6 into 3 which is 18 and 5 into 6 which is 30 and it is 24 upon 30. अब 18 और 24 के बीच में जितने भी नंबर है आप सबको लिख सकते हैं. 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30, 23 upon 30 and 24 upon 30. इस तरीके से आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे. चलो एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें. अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज यू हैव 3 upon 4 and 5 upon 6, राइट? सो 3 upon 5 4 है और 5 upon 6 है. अब डिनोमिनेटर एक में 4 है, एक में 6 है, तो दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है. आपको पहले इक्वल बनाने हैं. तो 4 और 6 का मल्टीपल, ओके, सेम मल्टीपल मींस एलसीएम. आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. सो एलसीएम ऑफ 4 and 6, 4 and 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना सबको आता है, आई होप. सो आप इस तरह से निकाल सकते हो. 2 2 जा 4,
2 3 just 6. 2 times 1 and 2 goes into 3. 2 doesn't go into 3. So 3 and 1. So 2 times 2 is 4. 4 times 3 is 12. So दोनों का LCM कितना हो गया? LCM is 12. ओके जब तुम्हें LCM 12 मिल गया है तो आप क्या करोगे? 4 को 12 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी चेंजेस आप डिनोमिनेटर में करोगे वही चेंजेस आपको न्यूमरेटर में भी करने पड़ेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से 6 को 12 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी वो है 3 times 3 is 9 and 4 times 3 is 12 and this is we have 10/12। अब दिख रहा है आपको ये 9/12 है, ये 10/12 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आपको 5 नंबर फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 करने हैं या 7 करने हैं, एनी नंबर्स ऑफ टाइम, राइट? सो लेट्स सपोज वी नीड टू फाइंड आउट 6। सो हम किससे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या 5 करने हैं तो हम इससे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके पास आ गया 9 times 6 is 54। So you have now 54 and it is 12 times 6 is 72 and this was 10 times 6 is 60 और ये हो गया आपका 72। अब 54 and 60 के बीच में आपके पास आ गया 55, 56, 57, 58, 59। ओके सो आप इस तरीके से नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। Okay, so how to find out rational number between two given numbers, rational numbers? This is the way. Understood? I hope it's clear to you now. Okay, thank you.